Good morning, everyone. Today we'll discuss about the IBS, irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome is a common disorder that affects the stomach and intestine. तो ये एक कॉमन डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को. IBS is also known as spastic colon, irritable colon, mucus colitis and spastic colitis. इसको हम spastic colon, irritable colon, mucus colitis and spastic colitis भी बोलते हैं. It is a separate condition from inflammatory bowel disease and isn't related to other bowel conditions. Irritable bowel syndrome is not a disease, it's a functional disorder, which means that the bowel simply does not work as it should. IBS is a common disorder that affect the large intestine colon. ये colon को affect करता है. IBS is a group of intestinal symptoms that typically occur together. The symptoms vary in severity and duration from person to person. तो ये depend करता है person to person पे. Definition क्या है इसकी? Irritable bowel syndrome is a chronic functional disorder characterized by recurrent abdominal pain associated with disordered bowel movements, which may include diarrhea, constipation, or both. So this is a chronic irritable bowel syndrome है. ये धीरे 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 ये फॉर्म होता है. So incidence क्या है इसके? Prevalence 3 to 20%. Worldwide reason for 20 to 50% of gastroenterology visits. IBS is less among Asian population with 6.5 to 11% prevalence rate. 26 prevalence among children with recurrent abdominal pain. 40% onset before age 35, 50% onset age 35 to 50, and female male 3:1 ratio is common. Okay. What is the etiology of IBS? तो etiology क्या है? Abdominal gastrointestinal GI tract movement like bowel muscle spasm. GI tract में प्रॉब्लम होना या स्पाज्म होना, ये पहला इसका प्रॉब्लम होगा. A change in the nervous system, communication between the GI and brain. ब्रेन और नर्वस सिस्टम में कनेक्शन लूज होना या कम्युनिकेशन में गैप होना. सो दिस इज द ऑल्सो रीजन. सेंसरी एंड मोटर डिसऑर्डर ऑफ द कोलन. सेंसरी और मोटर डिसऑर्डर से भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. डाइटरी एलर्जीज ऑफ फूड सेंसिटिविटीज़, यदि किसी फूड से एलर्जी है तो भी हो सकता है. न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, डिक्रीज सीरोटोनिन लेवल्स दैट कंट्रोल नर्व सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो किसकी कमी से? सेरोटोनिन की कमी से भी हो सकता है, जो कि क्या करता है? सिग्नल भेजता है ब्रेन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में, ये सिग्नल को कन्वे करता है. तो इसकी कमी से भी ये हो सकता है. जो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी हो सकता है. रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसमें? तो रिस्क फैक्टर में क्या है? जेंडर, अबाउट ट्वाइस एज मेनी women as men have the condition. It's not clear why, but some research think the changing hormones in the menstrual cycle may have something to do with it. So many women as men have the condition. It's not clear why, but some researchers think the changing hormones in menstrual cycle may have something to do it. तो females में ये ज़्यादा चांस होते हैं. एज, IBS can affect people of all ages, but it's more likely for people in their teens through their 40s. तो ये किसी में भी किसी भी एज में हो सकता है, बट 40s में ये ज़्यादा देखने को मिलता है. फैमिली हिस्ट्री, द कंडीशन seems to run in a family. Some studies have shown that the genes may play a role. Medication studies have shown a link between IBS. मेडिसिन लेने से भी इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो रिस्क फैक्टर क्या है? मेंटल हेल्थ, फूड सेंसिटिविटीज़ एंड अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक स्टमक प्रॉब्लम, डायरिया या फूड एलर्जी इसमें हो सकती है. तो मेंटल हेल्थ में क्या हो सकता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ और ऑल एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स इसमें ये रिस्क फैक्टर में आते हैं. फूड सेंसिटिविटीज़ में फूड लाइक डेयरी, वीट में जैसे कि किसी को ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है. शुगर इन फ्रूट्स,
जैसे फ्रक्टोज और द शुगर सब्स्टिट्यूट सॉर्बिटॉल, फैटी फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड अल्कोहल कैन ऑल्सो अपसेट डाइजेशन एंड दे में ट्रिगर सिम्टम्स। तो ये कर सकते हैं, सिम्टम्स ला सकते हैं। टाइप्स ऑफ आईबीएस, सो कितने टाइप का होता है? देयर आर 4 सब कैटेगरीज ऑफ आईबीएस ईच विथ इक्वल प्रीवेलेंस। सो आईबीएस सी, आईबीएस एस विथ कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डी, आईबीएस विथ डायरिया। तो आईबीएस सी जो होगा वो कॉन्स्टिपेशन से होगा, आईबीएस डी होगा वो डायरिया से होगा, आईबीएस एस जो होगा सॉरी आईबीएस एम जो होगा वो आईबीएस विथ कॉन्स्टिपेशन या डायरिया से होगा, आईबीएस जो यू होगा वो आईबीएस